First of all, good morning to all of you. Welcome in our class. First of all, welcome in our YouTube channel also. The channel name is DGNDJ Physics. It means that Dhan Guru Nanak Dev Ji Physics. So today is the 17th of the December. So Saturday. So welcome to all of you. So we will do the numerical based upon the laser. Numerical based upon the laser. But before going to start the lecture, first of all, I would like to recall the full form of the laser as we generally do in our lecture. So what is the full form of the lecture? Light amplification by stimulated emission of radiation. नहीं ऐसे नहीं, one voice में सारे light amplification by stimulated emission of radiation. मजा नहीं आया, नीचे जानी चाहिए. Light amplification by stimulated emission of radiation. Thank you. And laser is also called a loser. Laser is also called a. I have told you earlier. See, laser. So, LASER. So A can be replaced by O. A can be replaced by O. What is A? Amplification. A is amplification. And what is O? Oscillation. O stands for oscillation. So what is the full form of loser? Light oscillation by simulated emission of radiation. तो मैं लिख देता हूँ light oscillation by stimulated emission of radiation. ठीक है friends? So we can replace A by O. So that is a 2-mark question. In the laser, can we replace A by O? So please write the question. In laser question, conceptual question in laser, comma, in place of A, capital A, ये वाली A, in place of A, comma, it should be O. It should be O. Why? It should be O. Why? आंसर क्या होगा? What is आंसर क्या होगा? See, in the laser there is a laser medium. There is a laser medium, and we have a 2 plane mirror placed coaxially. And combination of these 2 plane mirrors are called optical resonator. ठीक है? And the space between the mirror is also called a cavity. It's called a cavity or resonant cavity. This is called a laser medium. And in the laser medium, these dots are called active medium. These dots are called active centers. ठीक है? Active centers. See, this is a partially reflecting mirror. And this is a highly completely reflecting mirror. Yes, total reflecting mirror. And what will happen first of all? Which action will take place? Pumping. By the action of pumping, we do population inversion.
मतलब आई हैव राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दी लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू पंपिंग. सी फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट अस वी सपोज दैट इसको आई थिंक आई शुड रब इट. हाँ जी, this is E1, this is E2. E1 is called a yes ground state, and E2 is called a excited state. And N1 is the number of atoms per unit volume in the ground state, and N2 is the number of atoms per unit volume in the excited state. Initially, before pumping, what will be the scenario? क्या होगा? हिंदी में समझाते हैं ना, क्या होगा बताइए. आज का लेक्चर हिंदी में चलते हैं ना, सारे हिंदी वाले हैं ना. स्टार्टिंग में बेटा क्या होगा? N1 ज्यादा होगा कि N2 ज्यादा होगा? N1 ज्यादा होगा. क्यों होगा? क्योंकि एटम्स ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं. एटम्स को ग्राउंड स्टेट अच्छी लगती है. हम भी एटम से बने हुए हैं. हमारी ग्राउंड स्टेट क्या है? हमारा घर, ठीक है. ग्राउंड स्टेट के कई नाम होते हैं. ग्राउंड स्टेट को मीन पोजीशन भी बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल देते हैं, ठीक है. हर एक आदमी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है. आई नीड टू से एटम्स वुड लव टू रिमेन इन दी ग्राउंड स्टेट. व्हाई? क्यों रहना चाहते हैं ग्राउंड स्टेट में? रीजन क्या है इसका? अच्छी लगती है, लेकिन कारण क्या है? स्टेबल है. ग्राउंड स्टेट क्या है? शाबाश, नहीं बहुत सही जवाब दिया लड़की ने. क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम आपका? पूजा. बिल्कुल पूजा ने सही जवाब दिया. ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल. ग्राउंड स्टेट इज स्टेबल. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबल का मतलब क्या है? आसान भाषा में अगर बताना हो, हिंदी में बताना हो, इन साइंटिफिक फिजिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? क्या मतलब है स्टेबल? है क्या? कंफर्टेबल है. चलो वो तो एक अलग बात होगी. साइंस में क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब सोचिए थोड़ा सा और एवोल्यूट कीजिए माइंड को. देखो बेटा, स्टेबल चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, स्टेबल का मतलब होता है स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी. अगर कोई भी चीज स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम है. उसकी एनर्जी क्या है? समझ आ गई? स्टेबल मतलब मिनिमम एनर्जी, ठीक है. एक यूनिवर्सल रिलेशन है, मैं आपको बताता हूं. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. ये फिजिक्स में भी यूज होती है, केमिस्ट्री में भी यूज होती है, ठीक है. जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, जो चीज कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है. अगर मैं बोलता हूं कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम. अगर मैं बोलता हूं किसी ऑब्जेक्ट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है? उसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा. उसकी एनर्जी क्या है? दो तरह के बच्चे होते हैं कैटेगरी आमतौर पे. एक तो बहुत शरारतें करने वाला, एक बिल्कुल आसानी से शांत बैठने वाला. जो शांत बैठने वाला बच्चा मतलब उसकी एनर्जी लेवल क्या है? कम. उसके पास उसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम. तो हम उसको क्या कहेंगे? ये बहुत स्टेबल बच्चा. ये क्या? बहुत स्टेबल बच्चा. ये बहुत शांत बच्चा. ऐसे कहते हैं ना, हम ऐसे कहते हैं ना, ये बहुत शांत बच्चा है, पीपा बच्चा है ना, ये बहुत शांत बच्चा है, स्टेबल बच्चा है. क्यों स्टेबल बच्चा है? क्योंकि एनर्जी मिनिमम है. एनर्जी क्या है? मिनिमम. दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा है तो बहुत शरारतें करता है, मिस्चीवियस है, मिस्चीवियस भी शरारती है, तो हम क्या कहेंगे? ये बहुत शरारती है, मतलब इसकी एनर्जी क्या है? ये बहुत रिएक्टिव है. ये क्या? बहुत, हम कह देते हैं बड़ा लड़ाका है, कह देते हैं ना. लड़ाके का मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा. जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी, है ना. उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? समझ आई? तो स्टेबिलिटी मींस स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी. इसका मतलब इनिशियली जब पंपिंग स्टार्ट नहीं की है बेटा, तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे एटम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी एक्साइटेड स्टेट. इनिशियली N1 N2 से ज्यादा होगा इनिशियली, ठीक है, ठीक है. N1 ज्यादा होगा N2 से. अब कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट को छोड़ना तो चाहता नहीं है. चाहता कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट को नहीं छोड़ना चाहता. क्यों? उसका घर है वो,
उसका घर है, मिनिमम एनर्जी में बैठा है। इसका मतलब हमें जो बाहर से पंपिंग करनी है, यहां से जो हमें पंपिंग का मतलब वी इंजेक्ट फोटोन्स, हम बाहर से फोटोन की बारिश करेंगे, फोटोन्स को स्ट्राइक करेंगे और वो फोटोन क्या करेगा, इस ये वाला एटम उसको अब्सॉर्ब करेगा। अच्छा, क्या हर एक एनर्जी का फोटोन उसको एटम को ऊपर भेज देगा? नो। कौन सी वाला भेजेगा? जिसकी एनर्जी बैंड गैप E2 माइनस E1 की इक्वल होगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Eg इज इक्वल टू h न्यू। जिस फोटोन की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी का इक्वल का फोटोन होगा, वही एनर्जी का फोटोन इस एटम को ग्राउंड स्टेट वाले एटम को एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा। पॉइंट समझ आया? समझ आई? मान लो इसकी एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है? 5। तो इसका मतलब ये जो हमारा फोटोन है, इसको क्या बोलते हैं? फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट फोटोन। तो बेटा इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारे पास? कितनी होती है फोटोन की एनर्जी? h। क्या होती है? h इज इक्वल टू h होता है ना, बाय मैक्स प्लैंक। E is energy of photon, h is called Planck constant and nu is called frequency. Nu is called the frequency of radiation. ठीक है बेटा? Any doubt? समझ आ रहा है? Are you enjoying? Yes sir. ठीक है? तो इसका मतलब ये जो फोटोन है, इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? h। और वो h किसकी इक्वल होना चाहिए? बैंड गैप एनर्जी के इक्वल का। कितना होना चाहिए? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे h is equal to Eg is equal to E2 minus E1। देख सकता हूं ना? इसका मतलब बैंड गैप एनर्जी का फोटोन ही ग्राउंड स्टेट के एटम को एक्साइटेड स्टेट में ऊपर भेजेगा, है ना? कोई बच्चा नीचे बैठा है, हमने उससे काम करवाना है, तो इसका मतलब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ऊपर जाके काम करेगा, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, है ना? तो देखो ग्राउंड, देखो कोई भी है, चाहे इंसान है चाहे एटम है, ग्राउंड देखो, जब मैं एटम बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, जब पार्टिकल बोलूंगा, एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन किस में बैठा है? एटम में बैठा है। तो एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। पार्टिकल भी बोल देते हैं, ठीक है? पार्टिकल मतलब भी, तो इससे मतलब इलेक्ट्रॉन ही बोल देते हैं ना बोल देते हैं। तो बेटा जब ये देखो, इसको बहुत ध्यान से समझो, जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है ना, वो हमारी तरह ही है, वो भी हमारी तरह ही है। जब कई बार इलेक्ट्रॉन चलता है, किसी मटेरियल में चलता है, जैसे आगे कोई ट्रैफिक आ जाती है, तो हम अपना रास्ता क्या कर लेते हैं? डाइवर्ट कर लेते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, वहां से कट करके कहीं और से निकल जाता है, ठीक है? बिकॉज हम सारे किससे बने हैं? ह्यूमन बीइंग्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बने, ठीक है? तो सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप नहीं जाएगा ऊपर, इसको ऊपर भेजने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिगरस पंपिंग। क्या बोलते हैं? रिगरस का मतलब हार्ड। पंपिंग क्या होनी चाहिए? हार्ड, ठीक है? जैसे हमें किसी आदमी से काम करवाना है, तो हम कहते हैं जा भाई काम करके आ, वो कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आदमी काम कर दे, ठीक है? तो बेटा कितनी एनर्जी होनी चाहिए इस इंसिडेंट फोटोन की? ये फोटोन बेटा आ कहां से रहा? बाय पंपिंग मैकेनिज्म, बाय पंपिंग मैकेनिज्म। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक पंपिंग मशीन है, मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक पंपिंग मशीन, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स? तो इस पंपिंग से हमने इस फोटोन को स्ट्राइक किया, ठीक है? तो इसका मतलब इस एटम ने, इस इलेक्ट्रॉन ने इस एटम को कंज्यूम किया, इस एटम ने और इलेक्ट्रॉन ने एटम को कंज्यूम किया। अब ये जो एटम है, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इस फोटोन को कंज्यूम कर लेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब लेना, कुछ अपने अंदर ले लेना, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है? एब्जॉर्ब, हमने खाना खा लिया, हम सनलाइट में बैठे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन है। ये प्रोसेस क्या है? क्या ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है एब्जॉर्प्शन, जो हम करवा रहे हैं? क्या ये अपने आप हो रहा है जो हम करवा रहे हैं? करवा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं ऊपर जा रहा, वो हम करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? बाय इंसिडेंट फोटोन, बाय पंपिंग, पंपिंग से हमने इंसिडेंट फोटोन को स्ट्राइक किया, और इलेक्ट्रॉन ने उस एटम को, इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को कंज्यूम किया, और एटम कहां पे चला गया फ्रेंड्स? ऊपर चला गया। कहां चला गया? ऊपर, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन। एब्जॉर्प्शन और, ठीक है? लेकिन ये अपने आप नहीं हो रहा, हम करवा रहे हैं, ठीक है? तो दो टर्म्स होती है बेटा, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है स्पॉन्टेनियस
एक होता है स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस होता है जो अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस। स्टिमुलेटेड होता है जो हम करवाएं, किसी को ट्रिगर करना, किसी को एक्साइट करना, इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड। जैसे एग्जांपल देता हूं, टीचर आता है क्लास में, कोई बच्चा अपने आप पानी ले आता है, टीचर ने मांगा नहीं, अपने आप ले आता है, तो वो फिनोमिना कौन सा हुआ? स्पॉन्टेनियस। क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। दूसरा, टीचर ने उसको कहा जा जा मेरे लिए पानी लेके आ, तो वो कौन सा हुआ? स्टिमुलेटेड। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। आप सारी क्लास में बच्चे बैठे हैं ना? क्लास में से किसी एक बच्चे का मन हुआ कि आज मैंने मूवी देखनी है। ठीक है, मान लो इस बच्चे का मन हुआ, क्या नाम है बेटा आपका? अभिषेक का मन हुआ कि आई वांट टू सी अ मूवी। और कोई बच्चा इसका मूवी देखना, क्या फिनोमिना है? स्पॉन्टेनियस। क्या है? इंडिपेंडेंट है ना, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। अब अकेला तो जाएगा नहीं, किसी दोस्त को ये कहेगा तू भी मेरे साथ चल, ऐसे ही होता ना। तो मान लो इसने इस लड़के को कहा, साथ वाले लड़के को, कि भैया तू भी मेरे साथ मूवी देखने चल। उसका दोस्त है, वो कहेगा हाँ चलते हैं। उसका मूवी देखना कौन सा है? स्टिमुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है, पहले वाले पे। जो मूवी पहले वाला बंदा देखेगा वही मूवी दूसरे वाला बंदा देखेगा, और दोनों साथ साथ चलेंगे। कॉलेज से एक ही रास्ते से, एक ही ट्रैक से चलेंगे, कॉलेज से एक ही रूट पे चलेंगे, एक ही रास्ते से पहुंच गए, एक ही थिएटर में, ठीक है, एक ही मूवी देखेंगे। समझ आई? दो अलग अलग फिनोमिना हो रहे हैं। पहले का मूवी देखना स्पॉन्टेनियस और दूसरे का मूवी देखना स्टिमुलेटेड। तो ये कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? स्पॉन्टेनियस वाला है कि स्टिमुलेटेड वाला है? ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ये स्टिमुलेटेड हो रहा है बेटा। क्या हो रहा? स्टिमुलेटेड। अपने आप थोड़ी एटम जा रहा है ऊपर, एटम अपने आप ऊपर जा रहा है। कौन भेज रहा है एटम के ऊपर? ये फोटोन भेज रहा है। जो फोटोन भाई साहब बैठे हैं, ये भेज रहे हैं इसको। और कौन सी एनर्जी वाला फोटोन? कौन सी एनर्जी वाला फोटोन? जिसकी एनर्जी बैंड गैप एनर्जी के इक्वल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो ऑब्जॉर्प्शन है, इसके आगे हम लिख दूंगा स्टिमुलेटेड। क्या लिख दूंगा? तो ये कौन सा ऑब्जॉर्प्शन हुआ बेटा? स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन। क्या हुआ? स्टिमुलेटेड ऑब्जॉर्प्शन और एक्साइटेशन। समझ आया? ये समझ आया आपको? आज तो मैंने काफी हिंदी में समझाया। ठीक है, आज कोई इंटरनेशनल बच्चा नहीं है ना, ठीक है, तो आज सारे नेशनल बैठे हैं तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमेना बेटा? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और और एक्साइटेशन और ठीक है। अगर मैं कहूं डिफाइन स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, तो क्या बताओगे? स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन होता है कभी? Spontaneous absorption is a meaningless term. Spontaneous absorption is a meaningless term. कभी होता ही नहीं, एटम कभी भी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। तो नोट लिखिए, एक लाइन पहले नोट लिखिए। स्पॉन्टेनियस एक्साइटेशन लिख लो। Spontaneous excitation is a meaningless term. रेड पेन से लिखना। Spontaneous excitation is a meaningless term. Spontaneous excitation is a meaningless term. ठीक चला ना? Spontaneous excitation is a meaningless term. अगर कोई वाइवा में आपसे पूछता है कि डिफाइन spontaneous excitation, जो एग्जाम में आता तो आप क्या लिखोगे आंसर? इट्स अ मीनिंगलेस स्पॉन्टेनियस एक्साइटेशन कभी होती ही नहीं है। हो सकती है? क्या एटम अपने आप ऊपर जा सकता है एक्साइटेड स्टेट में? नहीं जा सकता। कब तक नहीं जाएगा? जब तक वो मुझसे बाहर से एनर्जी ना। तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए? पहले तो उसको बाहर से एनर्जी चाहिए, ठीक है, और कितनी होनी चाहिए? बैंड गैप। दो लेवल्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप। क्या बोलते हैं बेटा? जब तक बैंड गैप एनर्जी का फोटोन एटम पे स्ट्राइक नहीं करेगा और एटम उसको खाएगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक एटम ऊपर नहीं जाएगा। तो पहली प्रोसेस समझ आ गई। जैसे हम करते हैं ना, खाना खाते हैं, बिना खाना खाए खाते हैं, हम कोई काम करते हैं? कोई आपके मम्मी पापा कहेंगे भाई जाओ वहां पे काम कराओ मेरा, जाओ बैठ का काम करो, तो आप कहोगे नहीं पहले मॉर्निंग है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, है ना, ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, फिर मैं काम करूंगा। तो वो ब्रेकफास्ट या मनी क्या होगी आपकी? एक्सटर्नल एनर्जी। क्या होगी? वो फोटोन हो गया। अच्छा मान लो अब हर एक आदमी की अलग अलग होती है,
हो सकता है कि ये 20 में ही हो जाए, हो सकता है ये 100 में भी सेटिस्फाई ना हो। तो वो क्या हो गया, मान लो आपकी फादर मदर ने आपको 50 दे दिए, तो आप कहोगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी बहुत कम है, मैं तो 200 से कम काम नहीं करूंगा। तो 200 क्या हो गया, वो आपकी एनर्जी होगी इस फोटोन की। तो आप 200 लोगे, साथ में ब्रेकफास्ट करोगे, तब आप सिमिलरली एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, एटम्स का बिहेवियर भी वैसे ही होता है जैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर का होता है। नेचर, आप नेचर से उसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रोसेस समझ आ गया, ठीक है। एटम कहां पे चला गया, इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, भेज कौन रहा उसे, इंसिडेंट फोटोन। उस इंसिडेंट फोटोन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पंपिंग। क्या बोलते हैं, तो वन लाइन में कहूं मैं, पंपिंग का क्या काम है, एटम्स को नीचे से, एटम्स को नीचे से, एक बात, पंपिंग का क्या काम है बेटा, पंपिंग का क्या काम है, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से, एक बार जोर से बोलो यार, रॉयल टाइम है, मॉर्निंग टाइम है। व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ द पंपिंग, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से, जोर से बोलो, एटम्स को नीचे से, नीचे से ऊपर भेजना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बनाओ वाला डायग्राम, बनाओ, देखना, तो ऊपर बनाओ, उसको साफ कर दूं, ये बाद में है ना। दूसरा डायग्राम, अब एटम यहां पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स। तो पंप अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द पंपिंग, पंपिंग क्या कर रहा है, पंपिंग इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। तो इसका मतलब जब सारे एटम, जब ग्राउंड स्टेट से नीचे वाले फ्लोर से सारे के सारे बच्चे ऊपर चले जाएंगे, तो नीचे वाला माला क्या हो जाएगा, खाली, ऊपर वाला क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस स्टेट में क्या होगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N1 से ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। N1 क्या हो जाएगा, हम कहेंगे N1 में कम बच्चे होंगे, कम एटम्स होंगे, N2 में ज्यादा होंगे। सेकंड फ्लोर पे बच्चे ज्यादा आ गए, ग्राउंड स्टेट अच्छी नहीं लगी, ठीक है। इसका मतलब N1 में बच्चे हैं, N1 में मतलब ग्राउंड फ्लोर में 5 बच्चे हैं, तो ऊपर पहुंच गए 40 बच्चे, तो 40 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसका मतलब पंपिंग का क्या काम हो रहा है, ये क्या हो गया, पहले क्या था हमारे पास, इनिशियली क्या था, और ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन क्या होगी, इन्वर्ट, पॉपुलेशन क्या होगी, इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट्स द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इन्वर्शन, उल्टा। जैसे बेटा मैं बोलता हूँ ये एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, तो ये इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज। कौन सी होगी, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्शन। क्या होगा बेटा, बताता हूँ, पॉपुलेशन इन्वर्शन हो गया। क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्शन हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन क्या हो गया, इन्वर्शन। नीचे के एटम्स कहां पहुंच गए, ऊपर, नीचे के एटम्स कहां पहुंच गए, ऊपर। समझ आ रहा, काफी आसान भाषा में चल रहा है ना, अभी जैसे हम अपनी लाइफ में जीते हैं ना, वैसे ही हम, आप मान लीजिए आप सारे एटम्स हो, आप सारे क्या हो, एटम्स हो। आप हॉस्टल में रह रहे हो, पहले आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, ठीक है। लेकिन कर कौन रहा, पॉपुलेशन इन्वर्शन कर कौन रहा, पंपिंग कर रही है। क्या कर रही है, तो वन लाइन में इसकी डेफिनेशन क्या होगी पंपिंग की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पंपिंग, क्या होगी, बनाइए अपनी तरफ से बनाइए, बुक को मत देखिए, बुक भी सामने बनाइए। पंपिंग से क्या हो रहा है, yes, pumping helps to shift electron from ground state to excited state, and due to this population inversion has been achieved. तो सिंगल लाइन में कहेंगे पंपिंग हेल्प्स टू कॉज पॉपुलेशन इन्वर्शन, पंपिंग हेल्प्स टू कॉज पॉपुलेशन। हिंदी में लिख लीजिए, पंपिंग से पॉपुलेशन इन्वर्शन होता है। हिंदी में लिख लीजिए, पंपिंग से पॉपुलेशन इन्वर्शन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या है, वो लिख लीजिए N2 ग्रेटर देन N1। पॉपुलेशन इन्वर्शन क्या क्या मतलब है, N2 ग्रेटर देन N1। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पंपिंग, तो आप क्या लिखोगे कि पंपिंग से हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव होता है, दैट इज N2 ग्रेटर देन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन, सिंगल लाइन, N2 ग्रेटर देन।
एक लाइन लिखनी तो लिख लो, N2 is the number of atoms in the excited state, N1 is the number of atoms in the, समझ आ रही मुझे? Yes. ठीक है बेटा, N2 is the number of atoms in the excited state, N1 is the number of atoms in the ground state. अच्छा, excited state को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम higher energy state, higher energy state. और ground state को क्या बोल सकते हैं? low energy state. It means when number of atoms in a high energy state ब्रैकेट में in excited state is more than the number of atoms in the ground state ब्रैकेट में low energy state, then this state is called a population version. This state is called a population version. Mathematically N2 greater than, तो पंपिंग से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन वर्शन हो गया. समझ आ गई? ये अब सही बात कही. पॉपुलेशन, एक जोर से बोलिए, पंपिंग से क्या हो रहा? जोर से नीचे तक आवाज. पंपिंग से क्या हो रहा? अंदर तक आवाज देनी चाहिए. पंपिंग से क्या हो रहा? मैथमेटिकली क्या हो रहा? N2 ग्रेटर देन है, N2 ग्रेटर देन है. ठीक है, लेकिन ये एक बार हम एक मान लो हमारे पास हमने पहली बार ये कंडीशन बना ली, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इसमें ज्यादा आ गए. ठीक है, लेकिन ये हमें लगातार चाहिए ऊपर, तभी लेकर आएगी. समझ आएगी नहीं? तो हमें हमारा अकेला पॉपुलेशन वर्शन से काम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सस्टेन. क्या चाहिए? सस्टेन. अच्छा, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सस्टेन? बेटा हिंदी में सस्टेन का मतलब क्या होता है? बने रहना. सस्टेन का मतलब बने रहना. अभी देखो आप अभी आप देखो 9:30 बजे देखो तो भी N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए. 9:45 देखो तो भी N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए. 10 बजे देखो तो भी N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 9:30 देखा तो N2 ग्रेटर देन N1 है, 15 मिनट बाद देखा तो उल्टा ये हो गया N1 ग्रेटर देन N2. मतलब ये कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी सेटिस्फाइड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए कि सस्टेन्ड पॉपुलेशन इन्वर्शन चाहिए? जोर से बोलिए. हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सस्टेन्ड पॉपुलेशन इन्वर्शन. सस्टेन्ड का मतलब बने रहना. सस्टेन्ड का मतलब 9:30 देखो तब भी सस्टेन्ड चाहिए. ठीक है, 9:45 देखो तब भी N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए. 10 बजे देखो तब भी N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए. है ना? ऐसे होना चाहिए ना? ऐसे होना चाहिए ना? जैसे आपने देखा होगा कि पहले जमाने में वो टीवी चलते थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, ऊपर एक एंटीना लगा होता था, है ना? तो एंटीना को सेट करना पड़ता था, तो बार बार ऊपर जाना पड़ता था ना. हम एक कई बार मार्क लगा लेते थे ना, मार्क पेंट से या चौक से कि एंटीने को यहीं पे रखना है. कई बार हवा आती थी, वो एंटीना घूम जाता था, तो उससे क्या होता था? चैनल साफ नहीं आता था. तो हमने क्योंकि हमने मार्क लगा रखा है, चौक लगा रखा, तो हम क्या करते थे? किसी भी बच्चे को भेज के या खुद जाके एंटीने को उसी पोजीशन पे ले आते थे, इसी की वजह से वो चैनल क्या हो जाता था? साफ. तो वो चीज क्या है? सस्टेन्ड. क्या है वो? सस्टेन्ड. जैसे हमने प्लस 2 में भी करते हैं ना, हमें इंटरफेरेंस करते हैं ना बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो स्क्रीन पे हमारे पास फ्रिंजेस आती है कि नहीं आती है? ब्राइट, डार्क, आती है कि नहीं आती है? ये ऐसा नहीं कि एक बार 9:30 बजे बन गई तो 9:31 पे देखिए ये खत्म होगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. चाहे 9:30 पे देखो, चाहे 9:31 पे देखो, चाहे 9:32 पे देखो, चाहे 9:33 पे देखो, तो हमें कौन सी फ्रिंजेस चाहिए? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. कौन सी चाहिए बेटा? सस्टेन्ड चाहिए. हर वक्त बनी होनी चाहिए, हर वक्त. ऐसा नहीं है कि एक बार चैनल साफ आ गया दोबारा फिर खराब हो गया. ऐसा नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चाहिए. ठीक है, हर वक्त कभी भी देखो तो ये फ्रिंजेस हमेशा बनी होनी चाहिए. इसी तरह से कभी भी देखो आप, ये कंडीशन मैथमेटिकल कंडीशन हमेशा बनी रहनी चाहिए. इसको क्या बोलते हैं बेटा? तो हमें पॉपुलेशन वर्शन से नहीं फायदा है, हमें किससे फायदा है? सस्टेन्ड पॉपुलेशन. हमें किससे फायदा फ्रेंड्स? सस्टेन्ड पॉपुलेशन. एक बार बोलिए, हमें किससे फायदा है? सस्टेन्ड पॉपुलेशन. ठीक है, ये है सस्टेन्ड पॉपुलेशन वर्शन. ठीक है. अच्छा, इसका एक बात हम बताना भूल गए. अच्छा, जो एटम है उसका ग्राउंड स्टेट में रहने का समय कितना होता है? उसका कोई गिनती नहीं है कोई. आप अपने घर में कितना समय रहना पसंद करोगे? पूरी लाइफ टाइम? अब किसी को कोई डिफाइन कर सकता लाइफ टाइम? तो जो चीज डिफाइन नहीं थी उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट. क्या बोलते हैं? तो मैं इनफाइनाइट लिख दूं, इनफाइनाइट, और इंग्लिश लिख देता हूं बेटा इनफाइनाइट. देखो जो फिजिक्स है ना, जो समझना ना आए उसको ब्रेक कर लिया करो. वर्ड को क्या कर लिया करो? ब्रेक. वर्ड को ब्रेक करके उसका डिक्शनरी मीनिंग निकालो. जैसे मैं बोलता हूँ सस्टेन्ड पॉपुलेशन वर्शन, नहीं समझ आ रहा, तो सस्टेन्ड का मतलब क्या है? बने रहना. पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, इन्वर्शन का मतलब उल्टा. तो इसका मतलब उल्टी जनसंख्या बनी रहनी चाहिए. उल्टी आगे नहीं डेफिनेशन, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. उल्टी जनसंख्या बनी रहनी चाहिए.
अच्छा, इसका कितना बेटा लाइफ टाइम? एटम यहाँ पे कितने समय पे रहना चाहता है? ये नहीं छोड़ेगा स्टेट। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक बाहर से पंपिंग का फोटोन इसको ऊपर तक नहीं ले जाता। इसी तरह ये एक्साइटेड स्टेट है। एटम इस समय में, इस स्टेट में कितना समय रहना चाहता है? बहुत कम, वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे आपकी ग्राउंड स्टेट घर है आपकी, आप किसी मामा के घर या चाचा के घर जाते हो तो कितने दिन के लिए जाते हो? 1 दिन 2 दिन। तो पूरी लाइफ के कंपेरेबल तो 1-2 दिन तो बहुत कम होते हैं, तो हम कहेंगे इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या है? बहुत कम। अब कितना कम है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकंड। ठीक है, कुछ बुक्स -8 लिखती हैं, कुछ इंटरवल में लिख देती है -8 to -10 सेकंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना ऐसा होता है, अगर प्लस टर्म है तो ये बड़ा होता है, ये टाइम ज्यादा है, अगर माइनस है तो उल्टा होता है। तो फिर ये टाइम छोटा हो जाता है, ये टाइम बड़ा हो जाता है। पता कि नहीं पता? पता कि नहीं पता? अच्छा, एक चीज पता क्या सीखने की एक सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? सीखने की सबसे बड़ी चीज है अपने आप को सरेंडर करो। अपने आप को क्या करो? समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? अपने आप को सरेंडर करना सीखो। कोई भी चीज सीखनी है, ठीक है। अगर मान लो हम भगवान से प्यार करते हैं, जो किसी भी चीज को हम चाहते हैं, तो अपने आप को उसके सामने क्या करो? सरेंडर करो। सरेंडर करोगे तभी वो चीजें आपको आएगी। ठीक है, और घड़ी का पॉइंट मतलब उसमें ये होता है कि अपनी जो चुस्ती चलाकी होती है वो सब छोड़ दो आप। समझ आई कि नहीं आई? अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दो, फिर आप ऑटोमेटिकली वो चीज आती है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकंड। एटम यहाँ पे बहुत कम समय के लिए रुकेगा। ठीक है, और यहां से एटम क्या होता है? अपने आप नीचे आता है। क्या होता है? अपने आप, क्योंकि लाइफ टाइम के एटम क्या है? बहुत कम है। ठीक है, जब वो नीचे आता है तब वो क्या करता है? एनर्जी मिट करता है। क्या करता है? एनर्जी मिट करता है। एनर्जी मतलब फोटोन को मिट करता है। कितनी एनर्जी होगी इस फोटोन की? एक्चुअली जितना लिया था उतना वापस कर दिया, जितना लिया था वापस कर दिया। आपने अपने किसी दोस्त से 500 का धारा लिया, आपका काम हो गया, तो आप कितने मोड़ोगे उसको? 500 मोड़ोगे ना। तो इसका मतलब बैंड गैप एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था, बैंड गैप एनर्जी का फोटोन उसने रिलीज कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एटम। इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। इसको क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। एटम जहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डी एक्साइट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ऊपर वाली स्टेट है उसका लाइफ टाइम क्या है? बहुत कम है। और जब एटम एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा? जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी बैंड गैप की, उतनी बैंड गैप की एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा? एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एमिशन। क्या बोलते हैं? एमिशन। क्या ये एमिशन अपने आप हो रहा है जो हम करवा रहे हैं? अपने आप हो रहा है। ये एमिशन क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है। ये एमिशन क्या हो रहा है बेटा? अपने आप हो रहा है। क्या मैं इससे आगे स्पॉन्टेनियस लगा सकता हूँ? पता लगा स्पॉन्टेनियस कैसे लगा? रट्टा नहीं मारना, ऐसे नहीं क्यों लगा दिया स्पॉन्टेनियस? वो है स्पॉन्टेनियस इसलिए लगाया। आज गेटिंग द पॉइंट? वो चीज स्पॉन्टेनियस है इसलिए लगाया। समझ आई कि नहीं आई? जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, उस पर लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई दूध का पैकेट है ना, उस पर लिखा होता है कि मिनिमम फैट 6। तो ऐसी कंपनी लिख सकती, इसका मतलब उन्होंने टेस्ट किया होगा और मिनिमम फैट कितनी आती होगी? 6 आती हो, है ना। जहाँ कई बार लिखा होता है कि इतनी एनर्जी है, तो वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये कौन सा एमिशन है बेटा? एमिशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी। एमिशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ एनर्जी। एमिशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। ये एब्जॉर्प्शन कौन सी होती है? हम करवाते हैं बाहर से, तो ये क्या होगी? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये एमिशन क्या होता है? अपने आप होता है, हम नहीं करवाते बाहर से, अपने आप हो जाता है। एटम अपने आप डी एक्साइट कर जाता है, डी एक्साइट करके दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और बैंड गैप एनर्जी का फोटोन जितना कंज्यूम किया था, अब्जॉर्ब किया था, उतना एमिट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब H2 E2 - E1 = H2 एनर्जी का फोटोन वो रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एमिशन, क्योंकि ये एमिशन अपने आप हो रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी ये फिनोमेना आकर कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। समझ आया? तो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दी two phenomena. What is called? First is called excitation or stimulated absorption, and second one is called a spontaneous emission. Second one is called a
स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब जो थर्ड फिनोमिना है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसके कारण लेजर आता है, जिसके कारण अच्छा हमारे जितने ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हैं, हमारे जितने ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हैं वो किस फिनोमिना पे काम करते हैं, वो इस फिनोमिना पे काम करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन पे काम करते हैं, ठीक है। और ये जो फोटोन होते हैं ये जैसे फॉर एग्जांपल एक फोटोन निकला ना, जैसे एक फोटोन निकला तो इस फोटोन की डायरेक्शन क्या होती है, रैंडम। क्या होती है, रैंडम होती है। क्या होती है, रैंडम। स्पॉन्टेनियस नोट लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज अ रैंडम इन प्रोसेस, ठीक है। जितने भी देखो ऑर्डिनरी लाइट के जितने भी फोटोन्स आते हैं, ऑर्डिनरी लाइट के जैसे कोई बल्ब है, कोई भी है हमारे पास लाइट ऑफ सोर्स है, उसके जो फोटोन्स क्या होते हैं सारे अलग अलग होते हैं। कोई इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होते, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा, उनमें कोई फेज रिलेशन नहीं होता, उनमें कोई फेज रिलेशन नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कैन कॉल स्पॉन्टेनियस एमिशन इज अ रैंडम। तो लिखिए इसको, स्पॉन्टेनियस emission is a random in a process, random in nature. Spontaneous emission is a spontaneous emission is spontaneous emission is spontaneous emission is a random process, is a random process, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा बेटा, Stimulated emission. यहाँ बता दो, मैं समझ आएगा, यहाँ पे दिख रहा सबको, यहाँ पे दिख रहा, Yes sir. ये बढ़िया लगा कंप्यूटर प्रोग्राम में। Yes sir. स्टार्ट पंपिंग सस्टेन्ड पॉपुलेशन वर्सेस स्टिमुलेटेड एमिशन, Later action. ठीक है। लेकिन स्टिमुलेटेड किसकी वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस की वजह से होता है, तो वो भी आई थिंक मुझे लिखना चाहिए ना, लेकिन उसका फैक्टर मैग्नीट्यूड कम होता है ना। चलो तो ये तो स्पॉन्टेनियस वाला फोटोन है, ये कौन सा फोटोन है, स्पॉन्टेनियस वाला, ठीक है। ये E1 है बेटा, ये E2 है, ये N2 है, ये क्या है, N1 है, एटम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो दो तरह के होते हैं, जो एटम होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तब वो दो तरह से नीचे आता है, एक तो अपने आप आ जाता है, जो अपने आप नहीं आते हैं, समझ आई कि नहीं आई, जो अपने आप नहीं आते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट, क्या करते हैं हम उसको स्टिमुलेट करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो इंसिडेंट एनर्जी का फोटोन है, जिसकी एनर्जी कितनी है, h, इसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू, इसकी एनर्जी कितनी है, h न्यू है, ये इस एटम के साथ इंटरेक्शन करता है, इस एटम के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन, इस एटम के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन। आई मीन टू से ये जो फोटोन है, कौन से वाला फोटोन है, स्पॉन्टेनियस वाला, कौन से वाला फोटोन है, ये जो निकला ना फोटोन, ये वाला फोटोन है, ये जो फोटोन निकला स्पॉन्टेनियस एमिटेड फोटोन, ये क्या करता है, ये वैसी कंसेप्ट है जैसे पहला बच्चा मूवी देखना चाहता है तो वो स्पॉन्टेनियस है, तो वो दूसरे वाले को एक्साइट करता है कि तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ मूवी देखने चल, सेम वैसे ही हो रहा। देखना ये जो स्पॉन्टेनियस एमिटेड फोटोन है, जब ये आता है ना, जब ये मीडियम में होता है, लेजर मीडियम में होता है, तब इस एटम के साथ ये क्या करता है, इंटरेक्शन, क्या करता है, इंटरेक्शन, मतलब इस एटम को क्या करता है, वो ट्रिगर, क्या करता है, ट्रिगर करता है, क्या करता है, ट्रिगर का मतलब किसी को छेड़ना, स्टिमुलेट, ट्रिगर का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट करना, ट्रिगर करना है। तो ये एटम स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन ये किस एटम के साथ ट्रिगर करता है, किस एटम को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है, जो एक्साइटेड स्टेट में बैठा है। सो आई वुड से कि स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन विल स्टिमुलेट और ट्रिगर, जो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन है, ये इस एक्साइटेड स्टेट में जो एटम बैठा है इसको ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है कि भैया तू भी मेरे साथ चल, तू भी मेरे साथ नीचे डी एक्साइट हो, ठीक है। तो जब इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, मैटर का मतलब इलेक्ट्रॉन, मैटर का मतलब मास, एनीथिंग व्हिच हैज मास एट ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड, है ना, ऐसा वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो ये क्या हो गया, मैटर, ये क्या हो गया, एनर्जी। तो एनर्जी मैटर के साथ बात करती है, फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ बात करता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को, ग्राउंड स्टेट वाले को, एक्साइटेड स्टेट वाले को, एक्साइटेड स्टेट वाले को, कि भैया तुम मेरे साथ नीचे डी एक्साइट हो। तो जब ये इसको स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है, तो क्या होता है, ये भी नीचे आ जाता है। तो हमारे पास टोटल फोटोन कितने आ गए फिर, एक तो ये बैठा, एक तो यही हो गया 1 वाला, दूसरा ये जो एटम आया नीचे आया, तो एक फोटोन इसका हो गया नंबर 2। तो हमारे पास बेटा कितने फोटोन आ गए,
दो फोटोन आ गए। तो पहला फोटोन कौन सा था? स्पॉन्टेनियस वाला, इसे ट्रिगर किया तो हमारे पास दो फोटोन आ गए। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। एनर्जी क्या होगी? सेम। जैसे मैंने कहा कि जो पहला बच्चा मूवी देखना चाहता है, दूसरा भी वही मूवी देखेगा उसके कहने पे, तो दोनों का रास्ता भी क्या होगा? सेम, पैरेलल चलेंगे, गेट तक भी सेम जाएंगे, ठीक है, आगे वाला रास्ता भी आगे होगा, सेम थिएटर में जाएंगे, सेम मूवी देखेंगे। इसका मतलब ये जो दो फोटोन्स हो गए इनको बोलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या बोलेंगे? स्टिमुलेटेड। ये कौन सा एमिशन हुआ बेटा? ये कौन सा एमिशन हुआ बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एमिशन। ये भी एमिशन है, ये भी क्या है? एमिशन। देखिए कौन सा एमिशन हो रहा है? ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि स्टिमुलेटेड हो रहा है? स्टिमुलेटेड हो रहा है। ये कौन सा हो रहा है? मुझे समझ आ रही है? ये कौन सा मिशन हो रहा है? ये कौन सा मिशन था अपने यहाँ? विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये मिशन स्पॉन्टेनियस मिशन। कहाँ लिखा था मैंने? ये अलग स्पॉन्टेनियस मिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मिशन हो रही है। देखिए ये मिशन क्या हो रही है? स्टिमुलेटेड मिशन है। मतलब ये जो मिशन है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, विद द हेल्प ऑफ इस फोटोन की वजह से होगी। सर वहाँ पे जो फोटो देखे उनको ग्राउंड स्टेट में तो भी एटम है ना, तो उसको भी एक्साइट करके सॉलिड स्टेट में कर सकता है, कर सकता है, दोनों को कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी होती है। वो अगला टॉपिक है, समझ आएगी नहीं? वो अगला टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो फोटोन है ये इस एटम को क्या करता है? ट्रिगर करता है कि आप भी मेरे साथ आओ। तो दो फोटोन निकलते हैं, दोनों की एनर्जी क्या भैया? दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। वेवलेंथ क्या है? सेम। एक ही डायरेक्शन में पैरेलल चलते हैं। दे आर इन फेज, दे आर इन फेज, इन फेज फोटोन्स। और कोहेरेंट बीम, इट्स अ हाईली कोहेरेंट बीम, इट्स अ हाईली कोहेरेंट बीम। और पैरेलल बीम, और पैरेलल बीम। अब देखो एक से कितने फोटोन आएंगे मेरे पास बेटा? वन, यहां पे लिखूं मैं, इसका मतलब वन स्टिमुलेटिंग फोटोन मुझे कितने फोटोन दे रहा है? 2 दे रहा है। कितना दे रहा? 2। अब ये जो दो फोटोन्स निकले हैं, ये और दो को क्या करेंगे? जो और दो आइटम बैठे हैं यहाँ पे, इनको क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। एक बंदे ने दूसरे को किया कन्विंस, ट्रिगर किया, आप मेरे साथ मूवी देखने चलो। उन दोनों ने क्या किया? आगे दो बंदों को कन्विंस किया कि चलो यार ग्रुप में चलते हैं। 4, 2 से कितने हुए? 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32 से 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4096। देखो इतने फोटोज हो गए। और सारे के सारे क्या चलेंगे? पैरेलल में। सारे के साथ चलेंगे पैरेलल, एक ही लाइन में। जैसे एनसीसी की परेड होती है ना, आर्मी वाले चलते हैं वैसे, एक ही लाइन में, एक ही रास्ते पे, एक ही थिएटर में, एक ही मूवी। तो इसका मतलब वन स्टिमुलेटिंग फोटोन हमें कितने फोटोन देता है? 2 फोटोन। और ये जो फोटोन होते हैं कौन से वाले होते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन वाले। कौन से होते हैं? क्या लिख देता हूं मैं? स्टिमुलेटेड एमिशन वाले होते हैं। अब ये जो दो फोटोन्स हैं ये क्या काम करते हैं? स्टिमुलेट का। क्या काम करते हैं? तो 2 ने क्या किया? 2 से कितने आए? 4, 4 से कितने आए? 8, 8 से कितने आए? 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 से 256, 256 से 512। तो ये क्या बढ़ रहा देखो, ये क्या बन रहा देखो जरा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 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 7, 2 की पावर 8 करके लास्ट में मेरे पास कितने फोटोन आ जाएंगे? 2 की पावर आपने बता दिया, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। इसका मतलब लेजर समझ आ रही है? लेजर समझ है? तो अभी है रट्टा लगाने की जरूरत है कुछ है? 2 तरह के मिशन होंगे, एक अपने आप होगा, उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या होगा? स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। और वो कौन सी एजेंसी होती है? स्टिमुलेटिंग, सॉरी स्पॉन्टेनियस मिशन का फोटोन, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी फोटोन्स आएंगे, इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो पहले फोटोन की होगी। जो किसकी होगी? पहले फोटोन की होगी।
जिस डायरेक्शन में पहला फोटोन चलेगा सारे के सारे उसी डायरेक्शन में चलेंगे, और सारे के सारे जब मिलके चलेंगे सारे के सारे की एनर्जी क्या होगी, सेम। देखो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच न्यू। एनर्जी सेम मतलब एच कांस्टेंट है तो न्यू भी सेम, न्यू भी कांस्टेंट आ गया, तो इसका मतलब एनर्जी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज सेम, सारे सेम फेज में होंगे, ठीक है। फेज इज रिलेटेड टू पाथ, फेज इज रिलेटेड टू अ पाथ, एंड इट इज अ हाईली कोहेरेंट बीम, highly directional beam, highly directional beam, highly directional beam, highly parallel beam. So that is why it is called a laser. Because ordinary source में क्या होता है, सारी फोटोन्स क्या होते हैं, अलग अलग चलते हैं रैंडम डायरेक्शन में, उनमें कोई फेज रिलेशन नहीं होता। ये क्या चलते हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। क्या सारे कैसे चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो एक ही जब डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको ये लाइट क्या बन जाती है, लेजर बन जाती है। और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। और ये हाईली मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। क्या होती है, हाईली मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है, तोड़ो इसको, हिंदी में तोड़ो इसको अलग अलग, इंग्लिश में तोड़ो पहले। हाँ जी, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो को तोड़ो, मोनो प्लस क्रोमैटिक। बेटा मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। क्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, कलर। क्रोमैटिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कलर, सिंगल कलर। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हो गया, सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब क्या हो गया, सिंगल कलर का मतलब हो गया सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल कलर का मतलब क्या हो गया, सिंगल फ्रीक्वेंसी। और सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, सिंगल वेव। क्या हो गया, सिंगल वेव। कैसे, देखो कैसे हमारे पास रिलेशन होता है ना, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या आ गया बेटा, C बाय लैम्डा। C स्पीड ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। तो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है, ये सिंगल है, तो ये भी क्या होगा, सिंगल। ठीक है, और दोनों का है इनवर्सली। जिस भी रेडिएशन का न्यू ज्यादा होगा उसका लैम्डा मिनिमम होगा, जिसका न्यू मिनिमम होगा उसका लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? तो सिंगल वर्ड में क्या आ जाएंगे, मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, जिसकी क्या हो, सिंगल वेवलेंथ हो। और ये हाईली कोहेरेंट बीम है। ये क्या, हाईली कोहेरेंट बीम, हाईली कोहेरेंट बीम है। और इसकी डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस बहुत कम है इसकी। डाइवर्जेंस क्या है इसकी, बहुत कम, फैलता नहीं है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस इज लेस। पूजा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस, लिखा होता है ना, डाइवर्जेंस लिखा होता है सड़कों पे, जब सड़क का काम चला होता है, इधर कट ले लीजिए, डाइवर्शन। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, इसका फैलाव बहुत कम है। इसका फैलाव क्या बहुत कम है, ये बिल्कुल पैरेलल चलती है। क्या चलती है, पैरेलल। और इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। इंटेंसिटी और ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या है इसकी, बहुत ज्यादा हाई है। So I think that is a properties of laser. So till now we have discussed the basic fundamental process that is happening behind the working of laser. First is called stimulated absorption, second is called a spontaneous emission, and the last but not least is called the stimulated emission. So I think it's the overall functioning of the laser. So you can make this computer diagram also for the sake of understanding. So thank you so much. I think आज के लिए इतना बहुत है। सर मीटिंग आज के सेशन के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस चैनल, रियली लाइक दिस क्लास और सेशन, सो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।